Assalamu alaikum everyone. This is Aisha Yusuf and welcome to another episode of Catch Up with Aisha. वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनके साथ हमने डायरेक्टली काम तो नहीं किया होता, पर हमें लगता है हमारा इनसे पहले से कोई कनेक्ट है। आज जो मेरे गेस्ट हैं उनके साथ मुझे यही लगता है। मैंने क्योंकि उनसे डायरेक्टली तो काम नहीं किया, बट मुझे लगता है जब भी मैं उनसे मिलती हूँ कि कोई कनेक्ट है, और मुझे लगता है वो कनेक्शन है खाना। बिकॉज ही इज वन ऑफ द ग्रेट मार्केटर्स इन आवर इंडस्ट्री जो काफी सालों से फूड कैटेगरी में ही काम कर रहे हैं। और मेरा तो यही है कि व्हेन आई सी पीपल रिलेटेड टू फूड, कुछ ना कुछ वाइब तो मेरी बन जाती है। जी हाँ, टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट. He is one of the great marketers in our industry of our fraternity, and he has been associated with food category for long. He is very talented and very versatile marketer. That's Mr. Shehzad Deshmukh. अस्सलाम वालेकुम शहजाद, क्या हाल है? हाय आयशा, I'm good. आप सुनाए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. लॉन्ग पेंडिंग पॉडकास्ट. Yeah, long view. We were trying to match calendars, but unfortunately, all's well that ends well sort of situation right now. Exactly. Alhamdulillah, it happened. How did your Eid go? It went well. Quite busy. A lot of food, lot of catch up with friends and family. So it was hectic, but good in a sense, a good break. Much needed. अच्छा शहजाद, मुझे ये बताएं कि you have been working in FMCG industry for quite some time now. अभी जो भी जनरेशन है या यूथ जब भी पास आउट होती है, पहला जो एम है वो है FMCG में जाना है. Okay. मार्केट इज टू क्लटर्ड, ठीक है, और अब तो स्क्रूटनी स्क्रीनिंग भी है इतनी ज्यादा जो है मुश्किल हो गई है, डिफिकल्ट हो गई है, दैट इवन द एम्प्लॉयर्स आर वेरी पर्टिकुलर हु दे वांट टू हायर. व्हाट्स द हैक टू गेट इनटू एन एफएमसीजी? देखिए, टू बी आपको मैं अगर पर्सपेक्टिव सेट करूं तो देखें, इट्स ऑलवेज अ डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन. तो सप्लाई अनफॉर्चुनेटली ज्यादा है, डिमांड रिलेटिवली कम है. सो इस वजह से द एम्प्लॉयर्स आर मोर चूजी, and every employer wants the best of the best talent. Exactly. They want a talent that has the right attitude and aptitude, plus that fits into the culture well. So अगर है cluttered competition है, but that's competition is something which you have to live with in life. So what I would recommend everyone to be focused in terms of which companies they want to build their career in. If FMCG is their passion point, then they focus towards finding those companies that will help them build their career. Right. And once you're focused and towards channelize up करते हैं अपनी energy, you tend to make your way through. करेक्ट. अच्छा, ऐसा आपको लगता है, ये बड़ी मैं बात सुनती हूँ मार्केट में कि ब्रांड नेम बहुत मैटर करता है यूनिवर्सिटी का. अगर आपके साथ एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम एसोसिएटेड है तो ये कंपनी आपको लेगी, वरना आप उनके स्क्रीनिंग तक भी नहीं पहुंचेंगे. सो स्किल सेट मैटर करता है, या फिर आपके ओपिनियन में यही बात है सच में कि ब्रांड नेम? देखिए, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बिकॉज देखें, इवन इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर कंपीटिंग फॉर द सेम पोजीशन. So you need to do something above and beyond to stand out. True. हाँ, definitely university से आपको एक head start मिलता है. But for me, if I have to put, career is a long drawn journey. So you have to be patient. It's like a marathon. शायद आपको head start ना मिले, but you have to be patient and resilient and build on it. Be consistent. Yes. And in long term, you will catch up. If you have the right attitude and skill set, you will catch up. So for the right hack to get into an FMCG, you need to keep your options sorted. Yeah. And you need to be focused कि path पता होना चाहिए मुझे जाना कहाँ. You are not directionless. So Aisha, it's not just about FMCG. It's a principle in life. The more focused and the more focused you are, the better you channelize your energy, because आप हर चीज तो नहीं कर सकते. तो जो एक चीज आपको अच्छी लगती है, जो आपको ड्राइव देती है, वो करें ताकि उसमें एक्सेल कर सकें. तो फूड आपको ड्राइव देता है? Yeah, देखिए, food, being a Pakistani, you cannot detach food from a Pakistani. So it does, although I tried to अवॉइड एज मच एज पॉसिबल, बट वो इंडल्जेंस हो ही जाती है. बिकॉज आपको पता है, जिस तरह की हमारे आपके कल्चर है या फेस्टिविटीज हैं या इवेंट्स हैं, so food is integral part of it and we love our food. So Pakistanis love our food. आप पहले डाबर के साथ थे, हेयर कैटेगरी से एकदम से आप एक शिफ्ट आया फॉर द फूड एंड देन यू स्टिक टू इट ना. तो मुझे लगता है आपको मजा आ गया खाने पीने की कैंपेन से. To be honest, it was
yeah, consistently I've been working with one of the Yeah. best brands in the Yes. industry. Yes. Alhamdulillah, all household names and Mm. the top Pakistani brands out there. They don't get bigger than this. Yes. So I've been fortunate and humble enough to have worked with those brands. And हाँ वो सिलसिला चलता रहा और हाँ. वो कह लें आप कि इतना प्लान नहीं था. हाँ. बट वो एक अपॉर्चुनिटी से दूसरी अपॉर्चुनिटी से तीसरी अपॉर्चुनिटी से. सही. अच्छा, तो आपने अपने जो स्विचेस किए वो बहुत फ्रीक्वेंट किए या यू गिव टाइम टू द या ऑर्गेनाइजेशन? इनिशियली तो मैंने थोड़े फ्रीक्वेंटली किए. हाँ. अब लास्ट 2 मैंने जो किए, स्पेशली जो लास्ट मैंने किया, तो उसमें हाँ. मैंने एटलीस्ट 4 and a half years I was with the last company I worked with, Tapal. ओके. ओके. And currently as well, it's always been almost been 3 years that I've been working with National Foods. अभी तो आपने अपने खास खास आइडियाज से कराची खास को कहाँ पहुँचा दिया है? Yeah, माशाल्लाह. Karachi Khas is a good step forward. It's Yeah. a strategic battle that we are fighting in a city like Karachi, which is a huge in terms of population. In the context of our business as well, it's a sizable city, and not just sizable in terms of due to population, sizable because the consumption per capita is 2x versus any other city in Yes. Pakistan. Yes. Yes. तो कराची में मसाले की कंजम्पशन कोई ऐसी मुझे बताएं, आपने इतने सारे कैंपेन्स के लिए काम किया है, आइडिया मतलब आपके आइडिया आपने एग्जीक्यूट किए हैं, तो ऐसी कोई वेयर्ड कंज्यूमर इनसाइट जो आपकी जर्नी में ना आपने ऑब्जर्व की कि यार फिर आप भी सोच रहे हैं ये भी होता है, लाइक देखिए बहुत सारी थी. अगर मैं एक जो मुझे स्टिल स्टिक्स टू माय माइंड इज के जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ इज ऑन अ राइज, हेल्थ कंज्यूमर इज गेटिंग हेल्थ कॉन्शियस. तो जब हम मासेस से बात करते हैं कि हेल्थ, व्हाट डू दे मीन अबाउट हेल्थ और हेल्दी ईटिंग, सो उनकी डेफिनेशन हेल्दी ईटिंग की ये है कि अगर मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ तो मैं हेल्दी हूँ. Unless I reach hospital and that stage, then there is a issue. Then apart from that, everything else hunky dory. So that is a challenge because the real definition of health is very different than what the masses believe. सही बात है. अच्छा शहजाद, खाना खाने का शौक है सिर्फ या पकाने का भी? ये अनफॉर्चुनेटली पकाने का नहीं है, खाने का ज्यादा है. चाय में बना लेता हूँ. चाय is something which I can make. टपाल से तो नहीं सीखा? नहीं, टपाल में हाँ, definitely part of the training we need to know how the tea is made, वो process था. But unfortunately मैं तो वो एक बोलते हैं ना कि शौक से पकाना, वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, which I am trying to build on. I hope रेसिपी मिक्सर्स के साथ. तो अब एक काम करें, कैसी कैंपेन बनाएं जिसमें आप खुद कुक करें. सारी रेसिपी मिक्सर्स नेशनल फूड्स की है ना, मुझे आपने अभी तो एक कैंपेन की थी दैट you guys are going to home and you were cooking with them. Now it should be Shahzad Deshmukh cooking all the recipes. नहीं छा जाएगी, कमाल हो जाएगा. मैं आपको बताइए कि आइडिया दे दिया मैंने आपको. नहीं, आइडिया आपका करेंगे इंशाल्लाह इनकॉर्पोरेट, बट आई डोंट थिंक सो आई डिजर्व टू बी द फेस ऑफ द ब्रांड. लाइक देयर आर बेटर सेलिब्रिटीज आउट देयर. अच्छा शहजाद, ऐसा होता है ना, देखिए मार्केट इज टू क्लटर्ड विद द आइडियाज. जब हम एडवर्टाइजमेंट्स के लिए भी निकलते हैं तो ऑलरेडी हर कोई चाहता है हम कोई नई चीज करें और बहुत सी चीजें हो चुकी हैं. How do you manage to get a new idea? Where do you get the inspiration? Yeah, it starts with the consumer. You need to know the consumer. The more uh, connected you are with the consumer, the better ideas you get, and then it's a process. What I believe, creative process usually takes time. So you need to be patient and plan ahead. होता क्या, जब भी आप इसको स्क्वीज करने की कोशिश करेंगे ना, then the creativity goes out of the window. So you need to give the process due time. आप जो भी एड अच्छी देखते हैं ना, बैक एंड में उसका प्रोसेस सही था तो वो एंड रिजल्ट बेहतर आया. सो एंड रिजल्ट से अगर आपको किसी चीज को गेज करना है तो आप ये गेज करेंगे वो प्रोसेस सही फॉलो हुआ तो फिर रिजल्ट अच्छा आया. अगर प्रोसेस ही ऑफ है, so you have to start with the consumer, then validate it, test it, then give it time, think through it, multiple articulation करें उसकी, and then they get into execution. Then उसमें बहुत सारे आपकी creative agency होती है, director होता है, खुद brand team होती है, involve होते हैं. So a lot of minds are there, which is part of the journey. So वही मैं बोलूँगा, you need to give it time to be to get a good creative output. अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी आपसे किसी ने ये सवाल किया, आई एम श्योर किया तो होगा लाइफ में, तुम अपने आप को आने वाले 5 सालों में कहाँ देखते हो? देखिए, I always wanted to do, I wanted to be a marketeer and FMCG marketeer. You were sure about it? Yeah, I was sure. I was Very sure from the university days. I was very sure about what I want to do in career wise. Very nice. And it helped. In terms of next 5 years,
देखिए right now I'm marketing manager, so I want to build on this portfolio of mine, take it one step at a time. So आप next दो आप या एक आप next career move देख रहे होते हैं, so better portfolio, bigger company, bigger brands, and definitely designation also follows. So yes. so you need to believe in terms of what you're doing right now matters more than what you want, where you want to be. So I would say कि जो कर रहे हैं उस पे ज़्यादा focus करें, very very and the right. path will unveil itself. वेरी राइट, क्योंकि जब आपने ये वाली बात की ना कि जो अभी कर रहे हो अगर वो ही अच्छा करोगे तो द पाथ विल इवेंचुअली फॉलो यू। मुझे ये सवाल ना थोड़ा सा जब इंटरव्यूज में लोग पूछते हैं, मैं सोचती हूँ यार अगले 2 दिन का तो इंसान को पता नहीं है कि क्या होने वाला है। 5 साल का वो बता दे कि अगर लेट्स सपोज बोलते मैं आपकी जगह पे बैठा हूँगा, कहेंगे वी आर नॉट गोइंग टू हायर यू, बिकॉज आई थिंक स्ट्रैटेजी जरूर होनी चाहिए लाइफ में कि पता हो करना क्या है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते यही होगा, because then there are circumstances. देखिए जो right now we are living in a VUCA world जिसको कहते हैं ना, where very volatility बहुत ज़्यादा है, uncertainty बहुत ज़्यादा है, so you need to adapt, and वो कहते हैं the most adaptable survive. You need to adapt to the times, everything is very volatile, so definitely you need to know where you want to be, goal post आपको पता होनी चाहिए, but उस गोल पोस्ट पे फोकस से ज्यादा आपको जो अभी आप कर रहे हैं उसको जितना आप एक्सीलेंस से करेंगे तब बेटर यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल पोस्ट। अच्छा मुझे बताएं, आपने मसालों की कैटेगरी में काम किया, चाय की कैटेगरी में काम किया, इससे पहले आप डालडा में भी थे। सबसे अब मैं ये नहीं कहूंगी कंपेयर करें किसी को, लेकिन एक होता है ना पर्सनली बहुत मजा आता है किसी कैंपेन को करने में, क्योंकि वो फूड कैटेगरी ऐसी होती है। तो आपको कौन सी कैंपेन में पर्सनली बड़ा मजा आया? ये जो रीसेंट हमने कैंपेन की जिसमें फॉर अस we have always been communicated are very high on functionality. So this time around we took an emotional route. Well, और जिसमें because आपको पता है food bonds people. Yes, so you yes, bond yes. over and it's part of our culture as well. So जो हमारा उसमें थीम थी बेसिकली वो जो बात चखा देने में है वो बता देने में काम। हाँ, beautiful. So वो कैंपेन थी, वो बहुत हमने 2 टीवी सीरीज बनाए थे उसके, if you have got a chance to see it, बहुत मतलब it was amazing journey itself. तो अच्छा ज्यादातर ऑब्वियसली आई थिंक व्हेन इट कम्स टू फूड तो इमोशनल अपील पे ही एम्फेसिस होता होगा ना, क्योंकि people are connected with emotions. Yeah, so when we talk to consumer, they usually tend to highlight those moments of emotional pride, and especially for females, it becomes even more critical because a lot of females are homemakers, so they focus their victory or their proud moment is once they can serve quality food to their family, and those moments around table do make their life better. Absolutely. अच्छा लेकिन अभी जैसे ईद आई या कोई ओकेजन आता है, पाकिस्तानी को खाने पे हाथ पे कंट्रोल तो है नहीं मतलब मजे का निहारी पाए, फिर रमजान के बाद तो वो वैसे ही इतनी क्रेविंग हुई भी होती है कि सब कुछ आ गया, कढ़ाई पाए निहारी तो सब भी सही टूट पड़ो, ठीक है तो अब होता ये है कि मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा पेट तो बेचारा यूज तो नहीं है ना, वो तो कहेगा मैं तो हल्का हाथ था रमजान में, तुमने क्या कर दिया है मेरे साथ, राइट? तो क्या हो जाता है कि ऑब्वियसली गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग के इश्यूज सबको नॉर्मली रहते हैं, तो उसके लिए जो है वो व्हाट डू यू थिंक दैट क्या करना चाहिए लोगों को, you know, something that कोई honest, if you'll ask me, which is, that suits our business. The more you have nihari and korma and kadai, because that's what we sell. But I would recommend कि आप caution से करें जो भी consume करें, plus दूसरा आपके पास अब जैसे products like a friend of mine is working with a lot of pharmaceuticals have products like Peridots. Oh yes, Peridots, absolutely. So that's recently launched in Faizan and Furqan. Furqan was with me in Dalda as well, so former colleague. So they have launched this product. I have not tried it as yet, but what I believe it's herbal and it's good for digestion. उसमें पुदीने का करके मैंने ट्राई किया है, तो मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं वाउच कर सकती हूँ। नहीं, surely coming from पुदीना is also very good for health. अब आप कभी भी it does तभी तो जब आप मिंट मार्गरीटा भी when you drink, और आपने मैं तो जब भी कहीं कैफे जाती हूँ तो मेरी एक ही ड्रिंक पर्टिकुलर है
जो भी सब खा लो, मैं मार्गेरिटा ले आइएगा। So I would always say कि yeah, best of luck to both of them, and they have Yeah, develop a good product, and बहुत अच्छी है। I hope that does wonders for them and their company. It is doing, कोई चीज आप अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट का उसको सोल्यूशन ढूंढ लेना, और जिस तरीके से अब तो बकरा ईद जब आएगी तो और भी ज्यादा भी मसालों पे, नेशनल फूड के मसालों पे और ही हाथ जो है वो लोगों का हैवी होगा। अच्छा शहजाद, जैसे हमने अभी पेरिडोर से मसाले वगैरह की बात की, एक फनी सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। ऐसा होता है ना, एक्चुअली हम दावतों में हैं, ठीक है, अब आप दावतों में और हम सभी सब एक साथ बैठे, तो कभी कोई उप्स मोमेंट हो जाता है लोगों के साथ। तो ऐसा कभी ऐसा मोमेंट हुआ, एंड हाउ डिड यू एस्केप फ्रॉम दैट सिचुएशन? It gets very embarrassing. It does, but I would recommend कि आप उसको let it sink in. So you avoid and move on. जितना आप उसके बारे में उसको रब इन करेंगे उतना मसला होता रहेगा। Exactly. और usually आप भाई मैं बोलूँगा, मतलब आप किसी के घर जा रहे हैं तो it does not look good as well कि आप उसको हाईलाइट करें। So I would like, कभी भी होता है कि खाना उतना नहीं है, या आप मसाला ज्यादा तेज है, या नमक ज्यादा है, so I would recommend कि आप उसको अवॉइड करें and just move on. नहीं, you are right कि आपने ना कभी भी सामने वाले को किसी भी चीज पे embarrass नहीं फील करवाना चाहिए, because things can happen with anyone. अच्छा, ये थोड़ा सा मसला है हमारा, हम लोग कभी-कभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी, इवन पर्सनल, थोड़ा मैं डाइग्रेस करूं, बट पर्सनल क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एंड दे बिलीव क्या मसला है, मतलब नहीं, यू नीड टू नो where to draw boundaries, and it's both ways, like sometimes you can ask questions but people don't want, ये होता है ना यूजुअली, और भाई कितना कमा रहे हैं, यूजुअली डायरेक्टली ऑफ द बैट लोग पूछ लेते हैं, तो अब सामने वाला जवाब ना दे, उसको वो करने की कोशिश करे, तो फिर वो वापस पूछते हैं कि कितना कमा रहे हैं। अरे भाई समझ जाए, मतलब समझ जाए बस, दाल रोटी चल रही है। पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोगों को नहीं पता होता where to set boundaries, and very abruptly people ask some questions that shouldn't be asked that abruptly. तो इस चीजों पे ख्याल करना चाहिए सबको अपने अपने हिसाब से। अच्छा, ऑब्वियसली यू आर अ माशाल्लाह मार्केटिंग मैनेजर, सो आपके अंडर एक टीम होगी, काफी सारे लोग होंगे, और सबसे मुश्किल काम होता है, मैं समझती हूँ, अपना काम इंसान कर लेता है, दूसरों से काम करवाना, people management is difficult when you are at a leader's position. How do you manage your team कि यार किसी को hurt भी ना हो किसी के sentiments, right? और आप काम भी निकलवा लो। देखिए, ये बहुत आपने अच्छी सवाल किया है। देखिए, ओवर द जर्नी आप जब स्टार्ट कर रहे होते हैं ना करियर, सो यू आर मोर सोलो कंट्रीब्यूटर। एज यू ग्रो अप द रैंक्स, इट्स ऑल अबाउट टीम मैनेजमेंट, बिकॉज आपने टीम के थ्रू, बिकॉज यू कैन नॉट डू ऑल द वर्क योरसेल्फ, you need team to deliver the shared goals of the overall organization and the portfolio, let's suppose you are managing. Definitely. So you need to engage your team. आप communication उनसे करें, regularly करें. So I try to have a monthly connect. वैसे तो daily भी होते हैं, but आप feedback session जैसे आप frequently रखें, उनको empower करें to take decisions. You need to back them up. Secondly, it's a process in terms of, so once a team is formed, ना आपको टाइम लगता है अंडरस्टैंड करने के लिए पर्सन को भी. So what are the do's and don'ts, क्या चीज है, because देखिए आपने वो environment provide करनी है that makes them एक तो comfortable plus makes them deliver the best of to their ability. Absolutely, yes. So अगर वो आप conducive environment के लिए आपको उस पर्सन को पर्सनली जानना जरूरी है कि भाई उसको क्या चीज अच्छी लगती है। कुछ लोग होते हैं सुबह आते ही आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम देना होता है। अच्छा, आप इतना अटेंशन टू डिटेल, मतलब बहुत, you need to because some people are early starters, so you need to be flexible with that, because देखिए, and how do you manage it, you have to be objective oriented. So जितना आप ऑब्जेक्टिवली चीजों को ड्राइव करेंगे, उनको शेयर्ड गोल्स बताएंगे, फिर रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विद जेन जी। यू नीड टू recognize their efforts. टॉलरेंस लेवल भी कम है। So देखिए, हम क्योंकि जो वर्कफोर्स आ रही है, you need to adapt to that workforce. They will surely not adapt that much because सारे अब आगे तो अल्फा जनरेशन अल्फा भी आ रही है, so Gen Z की जो वर्किंग हैबिट्स हैं वो थोड़े डिफरेंट है। The organizations are overall changing. जैसे flexi hours हो गए, आपका वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी हो गई, and COVID has also helped because digitization अब easy हो गया है. So you need to trust your team, engage with them, give them their environment and reward and recognize them.
आई थिंक बहुत अच्छी बात आपने कही एंड ऑल्सो सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज है शहजाद, इट्स नॉट जस्ट अबाउट जेंसी. इफ यू आर अ गुड लीडर यू विल सपोर्ट अ ह्यूमन एनी हाउ बिकॉज यू आर अ ह्यूमन. एट द एंड ऑफ द डे, एट द स्टार्ट ऑफ द डे, सबसे पहले आप एक बॉस होने से पहले भी इंसान हो ना. एंड दूसरा एक चीज जो मैं करता हूँ एंड आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू डू इज, देखिए इट शुड नॉट, the feedback should not be a one way street. Yes, If very I right. have to improve, my हाँ, team can also give me feedback. So right, we need to have sometimes hard and transparent conversations कि भाई हाँ ये हाँ, आपको मेरा चीज पसंद है, ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं बिल्कुल, है. So then rather than talking to 10 other people which we usually do, एग्जैक्टली. if they will tell me directly कि, and अगर मैं उसको मतलब हाँ, ओपन पर आप उसको माइंड से लूं, एट द रिसीवर्स एंड, क्योंकि देखिए आप तो एक बिगर पोजीशन पे ना, तो यू या कैन अथॉरिटाइज कि भाई तुम लोग ऐसे ऐसे करो, आई बॉस अराउंड. या बट आप में भी वो फ्लेक्सिबिलिटी है ना कि आप कह रहे हैं यार मुझे भी बताओ, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज मैं करूंगा, थोड़ा थोड़ा आप या लोग करना, मिलके वर्क या करेंगे. या सो इट्स टू वे. या इट्स टू वे. सो एग्जैक्टली, जब भी कोई मैनेजर पोजीशन पे हो, मैं खुद समझती हूँ आप एक, हमेशा एक इंसान एक एम्प्लॉय होता है और फिर लीडर होता है. जरूरी नहीं है कि एक एम्प्लॉय हो सकता है बहुत हार्ड वर्किंग हो, लेकिन वो लीडर भी उतना अच्छा हो. या It's not ऐसा ही है, ऐसा ही है. important. So what does Shehzad's dream job look like? Yeah, to be very honest, I wanted, this is sort of my dream job. I हाँ, wanted to be a marketeer in one of the wow, leading companies I'm serving right now. माशाल्लाह. Empowerment है. I manage a big portfolio. There are budgets to express Yes, as well, yes. so we do a lot of campaigns. There is a lot of innovation happening because, as you mentioned, Hmm. Gen Z, our portfolio current is not something which is not contemporary. And to give you a start, like आप कह लें 60% of Pakistani population is under 30 now, Yes, which is bigger than a lot of yes. countries. So we need to change our portfolio, which is future perfect. Futuristic हो and Exactly. adaptable हो. ताकि Yes. आगे जो Gen Z आ रही है हाँ, वो फिर क्या करेगी कि क्या, सही बात है. तो जो वो, so right now the focus on the company is towards a lot of Right. innovation. And NFL is a company that gives you that within That that, right? gives you the platform, and NFL's culture is all Yeah. absolutely amazing. आपको literally I have seen there, आपको ना as outcast feel नहीं होता, because people over there they try to make you feel like a family. नहीं, absolutely. So जब आप एक comfort level पे होते हैं तो फिर आप अपना आउटपुट 110% देते हाँ हैं. बिल्कुल. आप अगर बात करें NFL की एज ए कंपनी, मतलब पाकिस्तानी कंपनी विच नाउ Yeah. इंटरनेशनल पाकिस्तानी कंपनी, ट्रू सेंस. वी आर पब्लिक लिमिटेड. Yes. We have daycare facility. We have the culture itself is and the overall leadership is very progressive. Very progressive. So one thing and which helps, because आप जो भी अच्छा काम देखते हैं ना, without a good culture You are so you right. cannot do good job. क्योंकि आपके दिमाग से देखिए वो चीज हट गई, आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि अभी मुझे एडजस्ट होने में भी एफर्ट करनी है. Yes. वो सारी एनर्जी जब आपकी वहां नहीं यूटिलाइज हो रही, तो आपकी एनर्जी सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे जाएगी. Yeah, कि absolutely. मैं अपने काम को कैसे प्रोडक्टिव बनाऊं, टीम को कैसे एम्पावर करूं, और क्या नए आइडियाज, क्योंकि ये टेंशन नहीं है इसको प्रूफ करना है उसको प्रूफ करना है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट. Yeah. बट जब इनिशियली आप ज्वाइन करते हैं कोई कंपनी, Yeah. तो प्रेशर होता है ऐसे ही. दे डोंट रियली नो यू एंड यू डोंट रियली नो देम. पता तो होता है अच्छी बिल्कुल सही कह कंपनी रहे है, हो. अच्छा एम्प्लॉय हमने हायर किया है, बट ऑब्वियसली हर जगह के तौर तरीके अलग होते हैं. नहीं बिल्कुल तो सही कह रहे हो. आपको जब आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करते हैं, सही है, प्रूफ करने का आता है ना एक चैलेंज के यार, तो हाउ डू यू टैकल दैट? देखिए मैंने काफी ऑर्गेनाइजेशन चेंज की है, सो वही एक यूनिट, एक तो जो मेरी अपनी भी लर्निंग है, एक ऑर्गेनाइजेशन के डूज आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में फिट इन नहीं कर सकते. Okay. So because every Yeah. place has their own culture, you need Right. to embrace the culture of that place. Yes, yes. Plus जो lay of the land है ना, मतलब आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा निटी ग्रिटीज में कि कौन क्या है लाइक, मतलब किस तरह ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, कौन क्या करता है. सो प्लस कल्चर कैसा है, हाउ वुड आई अडैप्ट. Yes. सो आई वुड से फर्स्ट जो आपके इनिशियल फेज है, एब्जॉर्ब मोर. ये होता है ना कि आप जाते ही सवाल, ये क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों. So I would say कि आप, rather than asking question, you absorb more. The more you absorb, probably you'll get answers to a lot of questions. True. हाँ सवाल पूछे, for sure पूछे, but ये नहीं हो कि सिर्फ सवाल पूछे.
आप एब्जॉर्ब करें, अंडरस्टैंड करें क्यों हुआ। और बहुत अच्छा होता है, इजी होता है ना लोगों को कि यार ये अच्छा, मुझे तो सेल्स नहीं बन रहा, बट समटाइम्स यू डोंट नो सर्कमस्टांसेस क्या थे उस वक्त, क्या नीड थी, सिचुएशन क्या थी, क्यों ये लॉन्च हुआ था, सो एंड सो फोर्थ। सो डोंट बी जजमेंटल, बी पेशेंट एंड गिव इट टाइम and absorb and try to adapt to the place. अच्छा शहजाद, जब आप फूड कैटेगरी में होते हैं ना तो वहाँ पे आपके मार्केट कंपेटिटर्स भरे पड़े जी, बहुत कंपेटिटर्स एंड एवरीवन वांट्स टू डू देयर बेस्ट। ठीक है, आपके ऊपर कभी ये प्रेशर आया इस चीज का कि यार अभी कुछ नया और इससे भी बेहतर करना है जो कि कंपेटिटर्स कर रहे हैं? नहीं देखिए, इट्स you take that pressure? yeah, it is it's demanding because the stakes are very high. हाँ, You need to drive and deliver certain objectives which और competition तो है, so always आप, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि rather than being very competition focused, you need to focus on your own strengths and try to improve one step at a time. सो आज अगर लेट्स सपोज आप ये कर रहे हैं तो उसमें और बेहतरी कैसे सकती है, फिर और बेहतरी कैसे सकती है। अच्छा, इट्स नेवर एंडिंग जर्नी। सो जितना आप अपनी इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, ये पर्सनल लाइफ पे भी बहुत इम्पैक्ट करता है कि आप आज जो इस लेवल पे हैं उससे एक लेवल ऊपर जाए, फिर उससे एक लेवल ऊपर जाए, एंड सो फॉर्थ। And then if you will do better, then as a result you will beat competition. ऐसा ही है, if you will focus on yourself only, तो gradually आपका अली अच्छा होता है। शहजाद, इतनी माशाल्लाह आपके पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आती है? Who is your inspiration? Because माशाल्लाह एक चीज है आप में, और वो ये कि I have seen you connecting with people so well, right? Is it because you are a marketer and you have to do it, it's your job, or is it in your personality that when you meet people you just connect? Yeah, well, it has developed over the years. This is one side, and I like to connect with people because I learn a lot. So देखिए, जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ आज, fine, we will also, you will teach me something from your experience. There were एक चीज तो, ये दो चीज तो होंगी जो आपकी बेहतर होंगी या जो आपके एक्सपीरियंसेस होंगे जिससे मैं सीख सकता हूँ। और आप सोचें इतने लोगों से आप मिलते हैं, सो और आए वो होता है ना कि एक होता है कि मिलना फॉर अ benefit. I would recommend don't do that. True. Build on relationships. Relationships really matter. They, और आप लर्न करें। मैं आज भी, जैसे मेरे एक्स कोलीग्स हैं, कुछ मेरे मेंटोर्स हैं, मेरे एक्स बॉसेस हैं, मेरे स्टिल मेंटोर्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, आई एम स्टिल कनेक्टेड। देन मेरे कोलीग्स हैं, जैसे मेरे सबऑर्डिनेट्स वगैरह हैं। इट फील्स गुड बिकॉज आप इतना टाइम आपने गुजारा होता है एक ऑफिस में, 8 घंटे डेली। देन दूसरी फैमिली बन जाती है। और दूसरा स्ट्रेस, मतलब देखिए ना, बिजनेस इज नॉट स्ट्रेट लाइन ना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सिचुएशन टफ, कभी अच्छी सिचुएशन। सो देयर आर गुड डेज देन बैड डेज, सो वो मेमोरीज रह जाती हैं। सो आई वुड ऑलवेज से कि भाई व्हेनेवर यू लीव अ प्लेस, एंड में ना ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं याद रहते किसी को कि यार आपने इतना बिजनेस ड्राइव किया था, इतना, यही होता है कि हाँ कैसे था बंदा, इम्पैक्ट कितना क्रिएट किया, और लोग उससे वापस कनेक्ट करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। सही बात है, और इम्पैक्ट बिल्कुल सही बात है। और ऐसा होता है, स्टिल आई आल्सो मीट माय ओल्ड कॉलीग्स, मतलब जितना जब से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया अभी तक, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, तो पहली से लेके अभी तक की ना, सबसे जब भी अभी इवन जब मैं यूएई गई तो आई टोल्ड डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस के मेरे फ्रेंड्स थे कि मैं आ रही हूँ, एंड यू कैन नॉट बिलीव, सिर्फ ये नहीं कि होता है ना बोल देना फॉर्मेलिटी में, अच्छा चलो आ रही हो, गुड लक एंड ऑल, everybody invited me to their home कि तुमने रुकने आना है, तुमने खाने पे नहीं आना, तुमने रुकने आना है हमारे पास। और एक के पास तो मैं गई भी रुकने, because she insisted so much कि नहीं तुमने आना है। So that moment I felt कि यार ये लोग तो मेरे वर्क प्लेस के हैं, ये कोई मेरे साथ मेरे ब्लड रिलेशन नहीं है या मेरे कोई खानदान वाले नहीं है, but still you know आप relationship building is so important। और कॉर्पोरेट के लिए यूजुअली कहा जाता है कट थ्रोट इंडस्ट्री है, मैं मना नहीं कर रही, बिल्कुल है, पर अच्छे लोग भी फिर यहीं से निकलते हैं। नहीं देखिए, business is all about people. So you're dealing with people, consumers are also people, then you're working with a lot of cross department marketing में, तो आप हर किसी डिपार्टमेंट से आपका वास्ता पड़ता है, राइट? सो यू नीड टू वैल्यू रिलेशनशिप, बिकॉज एक लेवल पे आप अगर अच्छी रिलेशनशिप आपकी है, अच्छी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है, देन दैट्स वन पार्ट ऑफ लीडरशिप। यस एब्सोल्युटली। अच्छा शहजाद, एक चीज बताएं कि जब हम मार्केटिंग करते हैं और हमारे पास बिग बजट्स हैं, डू यू थिंक कि आप
जब बिग बजट से तो आप 360 मार्केटिंग कर सकते हैं ना, आप आउट ऑफ होम भी करेंगे, एक्टिवेशंस भी करेंगे, मीडिया, रेडियो, डिजिटल, सब जगह चले जाएंगे। जी जी ठीक है, दिस हेल्प्स। या फिर कभी कभी एक सिंपल सा आइडिया भी उसे हमने बस डिजिटल पे चला दिया तो वो भी वर्क कर सकता है। देखिए आयशा, मैं एक चीज बता दूं अपने हाँ एक्सपीरियंस से, जितना भी ज्यादा बजट हो जाए हमेशा कमी पड़ता है। सो इवन इफ यू हैव अनलिमिटेड बजट व्हिच यू डोंट हैव, always you हाँ fell short of something or the यस other. So यस you need to prioritize and understand which will give me better return on my हाँ ट्रू investment. ट्रू Uh, and over the years, because अब market इतनी आप कह लें, because inflation से अब तो थोड़ी बेहतर हुई है, but inflation से this economy has gone through, consumer sentiment is under stress. So और उसका फिर रिफल इफेक्ट आता है आपकी हाँ टॉप लाइन पे भी, फिर आपके बजट स्विंग होते हैं। बट anything you do, you need to be very cautious. You have to measure what matters. So you need to be cautious कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, जिस भी एवेन्यू पे लगा रहे हैं, is it giving you the right return or not? And you don't need to have the biggest of the budgets to create the best of the campaigns, right? absolutely yeah Excellence can happen even with the smaller budget. A lot of absolutely FE में I was there as a jury, so a lot of cases were very small budget cases, you are right ऐसा and they होता were है। doing phenomenal job and the results were amazing. इवन So शहजाद स्टार्टअप्स, अब जो लोग स्टार्टअप करते हैं उनके पास इतने बजट्स नहीं yeah, होते। yeah, मैं इस चीज से नहीं कॉन्फ्लिक्ट कर रही कि बड़े बजट्स नहीं होने चाहिए, अच्छी बात है, जितना बड़ा बजट उतना एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा, ऐसा ही आपके पास एवेन्यूज खुलते हैं, आप ये भी कर लें, वो ऐसा भी ही कर लें। ऐसा ही लेकिन जब बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं तो आप फिर आप कहते हैं कि यार मैं कम पैसों में किस तरह जुगाड़ करके ज्यादा चीजें कर एग्जैक्टली। सकता एंड हूँ। देखिए करियर में आपको कभी होता है कि आप हाँ कभी अप्स एंड बड़ा डाउन ब्रांड मैनेज कर रहे होते हो, ट्रू पोर्टफोलियो आपके पास होता है बजट, कभी हाँ आपको इस तरह का पोर्टफोलियो होता है जहाँ पे चैलेंजेस डिफरेंट, प्रॉफिटेबिलिटी के हाँ चैलेंजेस ट्रू होते हैं, ट्रू तो ट्रू लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना पड़ता है। सो यू नीड टू नेविगेट सही बात है। एंड हाउ वुड आई डू इट इज लाइक, if you have limited budget, then pick up points, touch points of consumer that give you better value for money. सही। अच्छा, आपके पास अगर कम बजट हो, ठीक है, और आपने कैंपेन भी Yeah, चलानी है, yeah. तो आप डिजिटल पे पैसे लगाएंगे या आप बिलबोर्ड्स लगाएंगे? नहीं, मैं डिजिटल फॉर श्योर करूंगा। डिजिटल लगाएंगे, डिजिटल की रीच अब तो बहुत बहुत ज्यादा बहुत है। ज्यादा बेहतर हो गई है देन बिलबोर्ड्स। एंड अब तो यूट्यूब, इफ यू टॉक अबाउट नंबर्स, इट इज ओह सो इट्स एज गुड एज एनी टीवी क्रेजी, चैनल नाउ। या एंड विद द Gen Z coming into making हाँ। purchase decision, तो digital is तो has to be there. अच्छा, कोई ऐसी चीज जो आपने जेन ज़ी से अडॉप्ट की वर्क प्लेस पे, Yeah, आपने कहा ये तो तुम लोग अच्छा है, ये मुझे भी सिखाओ। I कोई वर्क हैबिट, work habit. मतलब कोई आइडिया या कोई वर्क हैबिट जो आपने कहा यार जेन ज़ी ये बस कमाल चीज है। जैसे मैंने एक चीज जो सीखी वो कैनवा सीखी है रिसेंटली। ओह वेरी सो नाइस। कैनवा एस्थेटिकली आपकी प्रेजेंटेशन को काफी बेहतर हाँ कर हाँ लेती आई है। नो आई एम नॉट वेरी लाइक प्रो एट इट, या बट वो मैं देखता हूँ द वे दे मेक प्रेजेंटेशन, जो एस्थेटिक्स उसके होते हैं, हाँ एंड इट हेल्प्स इट बिकॉज हेल्प्स आपका अ अगर लॉट आप समटाइम्स यू हैव वेरी गुड रिजल्ट्स बट द या वे यू शो इट, यस सो वो एक चीज है जो मैं प्लस देयर मोर एक्सपेरिमेंटल आई बिलीव। एग्जैक्टली मोर एक्सपेरिमेंटल। और एक और चीज है वो ना हमारी तरह बुकवर्म नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप कैसे थे यूनिवर्सिटी टाइम पे, मैं थोड़ी सी बुकवर्म थी। मुझे लगता है एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक्सपेरिमेंटल हो ना, और जितनी भी स्किल्स आप सीख सकते हो ना। या मैं खुद अभी जो है ना अडोबी इलस्ट्रेटर सीख रही हूँ क्योंकि मुझे डिजाइनिंग का शौक है। नाइस। तो अब मुझे होता है कि व्हाई नॉट, मतलब अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं इन शॉर्ट पे जैसे एडिटिंग करती हूँ, तो मैं इन शॉर्ट को एक्सप्लोर करती रहती हूँ कि इस पे अच्छा अब क्या ये आफ्टर इफेक्ट लग सकता है, वो हो सकती है। तो या आपको जितनी भी, चाहे आपको एक्सेल सीखना है, कोई नया टूल है, जेनजीज इस चीज पे ज्यादा हैंडी है। नहीं है ऐसा ही। और देखिए आप जो बात करी ना, मैं एक बुक पढ़ी थी विच वाज फ्रॉम, जो एनालॉजी ऑफ द बुक वाज फ्रॉम क्रिकेट। सो हाँ क्रिकेट में आप हर वक्त सिक्स नहीं मार सकते, सो आपको हाँ सिंगल्स भी लेने हैं। सो सिंगल्स जब आप लेते रहेंगे तो उसको कंपाउंड करेंगे तो एक साइजेबल अमाउंट बन जाती है। सो सिंगल्स आर इम्पोर्टेंट। यस सो एवरी डे इफ यू कैन इम्प्रूव समथिंग, और एवरी मंथ इवन, हाँ तो दैट एड्स अप। या जरूरी नहीं कि आपका छक्का ही लगे। सही बात है। तो ये अच्छा शहजाद, अगर आपका अपना कोई स्टार्टअप हो, कभी सोचा है कभी करने का कुछ खुद से, ये किस साइड चीज हसल का तो हो? वो फॉर श्योर होनी चाहिए। स्टार्टअप
ऐसा कुछ प्लान तो नहीं किया। पर कभी अगर हो तो आप किस चीज फूड पे, तो आपको फूड का माशाल्लाह एक्सपीरियंस काफी है तो मतलब जरूरी नहीं है फूड पे करूं, बट पर यू हैव योर प्रेफरेंसेस। या मतलब टेक्नोलॉजी लेड कुछ हो सकता है। हाँ, सो इवन टेक्नोलॉजी एंड फूड इफ यू कंबाइन इट, सो आप कोई रीसेंट ऐसी चीज आपने देखी हो जिसमें टेक्नोलॉजी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड विद फूड, बिकॉज आप लोग नेशनल फूड में इतने एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी देखिए हमारे पास जो एक तो मशीनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, स्टेट ऑफ द यस, आर्ट मशीनरी यस, होती है, that we invest on in a lot. Then packaging formats that we are हाँ, हाँ, exploring, हाँ, which are more durable, more यस, eco-friendly as well at the same time. So ये सारी चीजों पे हम इन्वेस्ट करें। हाँ, in terms of the product itself, वो somehow वो उसकी लिमिटेशन है, वो उसी तरह रहता है, but we are exploring how can we do anything which is led by technology, because that eases the effort. एग्जैक्टली। और तो वर्ल्ड इज मूविंग टू टेक्नोलॉजी, हम तो फिर भी आई थिंक थोड़ा सा पीछे हैं। इफ यू गो टू अब्रॉड, Yeah, वो फ्यूचर में ही जी रहे हैं। ऐसा ही है। लाइक अभी मैं देख रही थी यूएई हैज दैट मोबाइल पुलिस स्टेशन वेयर देयर इज नो ह्यूमन, एंड आरटीज हैं कुछ Yeah, कुछ yeah, जगहों पे, एंड इट्स जस्ट यू कैन गो एंड जस्ट रिपोर्ट योर कंप्लेंट, देयर इज नो वन, एंड देयर yeah, इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स yeah, एज वेल। humanless. So autom world is moving to Yeah, automation, even the Ghibli effect yeah, इसमें yeah, trend कर रहा है। yeah. मतलब अब मुझे लगता है कंटेंट राइटर की जॉब एआई खा चुका है। अभी जो ग्राफिक डिजाइनर की जॉब वो खा रहा था, और पता नहीं आगे जाते जाते एआई क्या करने वाला है। बट शहजाद, इट वाज रियली लवली टॉकिंग टू यू। हाँ, काफी सारी मुझे भी इनसाइट्स पता चली और काफी हमने गपशप की। लास्टली आई वुड लाइक टू नो दैट आप कोई मैसेज टू एवरीबॉडी, मे बी Gen Z, maybe youth, or maybe leaders, or anyone who is watching this or listening to us, आप क्या कहना चाहते देखिए मैं तो यही बोलूंगा कि यू नीड टू नो व्हाट इज योर पैशन। सम इट्स ओके इफ यू राइट नाउ एक्सप्लोरिंग, हैं? but the early you're able to find out what really is you are passionate about, and then take measures in terms of reaching your goal, that would really help you. Because अगर clarity of thought है ना कि मतलब मुझे करना ये है, then everything that you're gonna do will manifest in terms of better results. हम्म, और हाँ, शुरू में नहीं होती, मुझे भी नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट द बट मेरे साथ जो दूसरे मेरे कह लें आप स्कूल में डेज में बच्चे थे या मेरे फेलो क्लासमेट थे जिनको थी, हाँ, I see their progress, yeah, and I see there was the progress was different than mine, yeah, because they were clear in terms of the early days, कि यार मुझे ये करना है, and they stick to it. क्लैरिटी बहुत जरूरी है। Clarity, and then you need to be patient about it, and then improvement करते रहे। मतलब आप life is all about improvement. Every day you need to improve. जो मैं आज हूँ probably मैं आज से 10 साल पहले नहीं था नहीं, वैसा, तो obviously, आप you need to further improve step by step, and so and then when you compound that, you are a better version of yourself. so So with that amazing thought, Shahzad, thank you so thank you. very It was a much. pleasure having on coming on this show. Thank you. Long due, but worth the wait probably. आई होप आपको भी मजा आया हो, बिकॉज मुझे तो बहुत मजा आया। बड़ी मजे की भी बातें हुई और बड़ी इंसाइटफुल भी बातें हुई, एंड विद दैट मैसेज ऑफ शहजाद आई विल टेक योर लीव, एंड आई विल कैच अप विद यू इन अनदर शो विद अनदर एपिसोड विद अनदर अमेजिंग गेस्ट। टिल देन आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखें, पेरी डॉट्स खाते रहें और कराची को प्लीज प्लीज साफ रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।